بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج چوک اعظم ضلع لیا کا گیٹ وے منی پاکستان، چوک اعظم کے مسائل، مشکلات، حل اور ان مسائل کے ذمہ داران کے حوالے سے پروگرام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید کوثر عباس شاہ صاحب، آپ سینئر صحافی اور نمائندہ TRY۔ آپ کے برابر میں موجود ہیں محمد مرتضیٰ قادری صاحب، نمائندہ خبریں، سینئر صحافی، چوک اعظم۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ظفر اقبال نیوی صاحب، سرپرست پریس کلب چوک اعظم۔ پروگرام میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز اس سوال سے ہم کریں گے کہ جس شہر کے باشندے پینے کا پانی پینے کے لیے ہر وقت کولر ہاتھ میں اور پانی کی بوتلیں خریدتے نظر آئیں، اس شہر کے مسائل کی فہرست کتنی لمبی ہوگی؟ سید کوثر عباس شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور میرے شہر چوک اعظم کی جو ہے ان کے مسائل اور اس کی آواز ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے آج جو آپ کا سورس یعنی کہ 30 منٹ ملک مقبول الہی کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ملک صاحب، آپ نے انتہائی اہم سوال کیا ہے۔ 2014 میں جب میں TRY نیوز میں آیا تھا، اس وقت پہلی سٹوری میری جو ہے یہ چوک اعظم جو ہے صاف پینے کی تھی، صاف پینے کے پانی کی۔ ہمارے چوک اعظم کے وسط میں تحصیل ناظم ملک منظور حسین جوتا صاحب نے پیورفیکیشن پلانٹ وہاں پہ لگوایا تھا، جو کہ چند سال چلا۔ اس کے بعد چوک اعظم کے لوگ جو تھے، جو چوک اعظم کو ہر سال ہر صدی میں لوٹتے آئے ہیں، انہوں نے جناب وہاں پہ پیورفیکیشن پلانٹ ختم کروا کے وہاں پہ دکانیں بنوا دیں اور پھر ان کی نیلامی ہونے پونے کروا کے دوسرے لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح سے چوک اعظم کی جو عوام تھی وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے MNA سکلین شاہ بخاری صاحب نے ایک پیورفیکیشن پلانٹ کے بجائے انہوں نے واٹر سپلائی جو ہے وہ یہاں پہ پلانٹ لگایا نہر کے اوپر۔ اس کے بجٹ کتنا تھا، کتنا اس پہ خرچ ہوا، یہ اس کے فگر ملک صاحب آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ایک کمرہ بنا کے اس کے ساتھ ٹوٹیاں لگا کے جو ہیں وہ بنا کے اس کا ڈیزائن کھڑا کر دیا گیا، لیکن پانی کی جو سپلائی تھی وہ بحال نہ ہو سکی۔ سلسلہ چلتا آیا۔ اس کے بعد جو صحافتی نمائندگان ہیں انہوں نے اس آواز کو بلند کیا کہ چوک اعظم کے اوپر جو ہے صاف پانی ہونا چاہیے، تو کوئی بھی سیاسی اس مین منصوبے کو نہ لے کے آ سکا اور نہ چوک اعظم کی جو واٹر سپلائی ہے اس کو چالو کروا سکا۔ جی، البتہ ہاں ایک ٹوٹی لگائی گئی روڈ کے اوپر شیل پیٹرول پمپ کے ساتھ، اور وہ بھی چند مہینے چلی، اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ تو آج حالت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے گھروں میں پلانٹ لگائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نہر کے اوپر سے ٹینکیاں جو ہیں وہ لوکل وہ بھر کے لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کس قسم کے جراثیم ہیں اور کس طرح کے جناب وہ پانی ہے، اپنے طور پہ اس کو پیورفیکیشن وہ پانی بنا کے دے رہے ہیں، لیکن اس میں آج بھی آرسینک کے جو ہے جراثیم موجود ہے۔ ظفر اقبال صاحب، پانی ظاہر زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج تک
चौक आज़म के इस बुनियादी मसले के हल के लिए किसी हुकूमत ने, अवामी नुमाइंदे ने कोई संजीदा काम किया हो तो आप हमारे साथ शेयर कर ज़रूर कीजिए। किसी ने कोई नहीं की। विपक्ष है तो नवाज साहब को लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं की। जो मुस्लिम कमेटी के गेट के साथ नहीं थी वो प्लांट भी उल्टा बंद कर दिया और उन दुकानों को भी ठेके पे चढ़ा दिया। इसकी अशद जरूरत है। इसकी प्योर पानी न होने की वजह से बच्चे आंखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, पेचिस का शिकार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। बहुत दूर से जहाँ पानी लाया जाता है तो फिर अखराजात ज्यादा आते हैं। मुतवस्सित तबके के लोग साफ पानी पीने से महरूम है, फिर वो अपने ही नलके से पानी पीकर बीमार होते हैं और अस्पतालों में तादाद मरीजों की बढ़ती चली जाती है। जी, ज़ाहिर है पानी ना होने से, सेहतमंद पानी ना पीने से उसके जो मुज़मरात हैं उस पे बिल्कुल एक मसाइल हैं और इंसानी सेहत के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह है। मुर्तज़ा कादरी साहब, आपको ये तवक्को, कुछ आपको उम्मीद नज़र आती है कि मौजूदा हुकूमत इस मसले के हल की तरफ कोई तवज्जो देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब के प्रोग्राम की स्मरण में मुझे मौका दिया गया इस काम का शुक्रिया ममनून है आपके। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर दौर के अंदर MPs, MNA जो अवामी मैंडेट से कामयाब होकर आते हैं वो एक अवाम को, चौक आज़म की अवाम को दिखाते हैं। इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शहर चौक आज़म को मॉडल बना देंगे, हम ये सहूलतें ले आएंगे, ये सहूलतें ले आएंगे। ये ऑलरेडी पहले साफ प्योर पानी की सहूलतें मैसर थी लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। 1985 के दौर के अंदर घर घर लोगों की टूटियां लगी हुई थी, साफ पानी मैसर होता था। अब वो निजाम इन्होंने खत्म कर दिया। ये इस पानी से और साफ पानी से हमेशा शहर महरूम है। खरीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं, कई मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि इस पर कोई आने वाले लोग या अवामी नुमाइंदे तवज्जो दें। जी, ज़फ़र इकबाल नेवी साहब, आपने सैर हासिल गुफ्तगू सुनी कि पीने का पानी चौक आज़म का एक बड़ा मसला है। कौसर अब्बास शाह साहब, पानी के बाद अगर हम सेहत आमा की बात करें तो चौक आज़म जिसकी आबादी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले 5 सालों में उसकी आबादी में तो 3 गुना अगर हम इजाफा शुमार कर लें तो आप क्या फरमाते हैं कि इस वक्त चौक आज़म शहर में जो बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चौक आज़म हस्पताल में इलाज मुआवजे की वो सहूलियात मैसर नहीं है जिसकी ज़रूरत थी। आने वाले सालों में जब आबादी, मरीज़ और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, उस वक़्त का नक्शा आप क्या देख रहे हैं? कौसर अब्बास शाह साहब। जी मलिक साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है, लेकिन इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बजट जो है वो उसका यहाँ जिक्र करना इंतहाई अहम है। जाहिर बात है, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर OPD में 800 से 1000 पेशेंट आ रहा है, एमरजेंसी में 200 से 300 पेशेंट आ रहा है, तो उनको बजट भी उतना चाहिए होगा। तो बजट के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो बजट इंतहाई कम है। अस्पताल के अंदर जो है सहूलियात, मतलब ये पहले हमारे पास RHC था, इसको फिर THQ लेवल पे लेके आए। THQ लेवल के ऊपर फिर डॉक्टर्स की तैनातियां होते होते अब जाके
मुकम्मल हुई हैं, जिसमें आई स्पेशलिस्ट भी जो डॉक्टर हज़रात बता रहे थे कि एक हफ्ता पहले आई स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल जिस तरह डे बाई डे पहले RHC था उसको THQ किया गया, लामाला नेक्स्ट इसको अगर ये 20 बेड पे है तो नेक्स्ट इसकी एक्सटेंशन भी करनी पड़ेगी, इसको 200 बेड तक लेके जाना पड़ेगा, 400 बेड तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर अर्ज करता चलूं कि हमारे जहां तक नॉलेज में है कि THQ अस्पताल चौक आदम का बजट कम है, मरीज बहुत ज्यादा है। ये आपकी बात बहुत ही अहम है कि आइंदा आने वाले सालों में अगर गवर्नमेंट बजट यही रखती है तो लोगों को क्या सहूलियात मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं हमारा वहां पे ऑपरेशन नहीं होगा, मेडिसिन नहीं मिलेगी। जब OPD में जाते हैं किसी भी गरीब आदमी को दवाई नहीं की जाती, जफर साहब से पूछते हैं कि ये जो बजट जिसका आपने बड़ा जिक्र फरमाया, अब ये बजट नेवी साहब लाएंगे, मुर्जा साहब लाएंगे, कौसर अब्बास शाह साहब लाएंगे, कौन लाएगा? ये बजट की कुंजी कौन खोलेगा कि चौक आज़म अस्पताल में दवाइयाँ भी आ जाएं और उसकी मशीनरी भी पूरी हो जाए, इमारत भी ठीक हो जाए? जी नेवी साहब। जी, जो सिलेक्टेड वोटों से आया हुआ MP होता है उसको ये इख्तियार नहीं देते। जाहिर है MP साहब का ही काम है, जैसे कि ग्रेटर थल कैनाल पे उन्होंने तवज्जो दी है, काश्तकारों पे तवज्जो दी है, इसी तरह मुझे कभी उम्मीद है कि अगर शोएब अमीर अमान साहब को खुलकर खेलने दिया जाता, वो अपने हल्के में बहुत कुछ करते, वो बजट लाते, खींच के लाते। और चौबारा का जो THQ है, ये भी हम चौक आज़म की बात कर रहे मैं हैं उस पर उठ गया हूँ जी। उससे 4 गुना ज्यादा लोड चौक आज़म के THQ पे है जी। अख्तियार तहसील लेवल पे रह रहा है ये, लेकिन अखराजात यहाँ के ज्यादा है, इसलिए चौक आज़म पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अरबाब इख्तियार को, लेकिन नहीं दे रहे, उनको खुल के खेलने नहीं दिया जाता, उनका गला घोट दिया जाता है। चले उन्हें किसी ने आवाज बुलंद करने से तो किसी ने नहीं रोका। अगर चौक आज़म के अस्पताल के इश्यूज हैं तो कर्नल साहब को बात करनी चाहिए। उनके पास फोरम भी मौजूद है, पार्लियामेंट भी मौजूद है और पब्लिक फोरम भी उनके पास सारे ही मौजूद है। मुर्जा कादरी साहब, चौक आज़म ज़ाहिर है एक बड़ा कस्बा है और तालबात की बहुत बड़ी तादाद स्कूल जाती है, और जो इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चौक आज़म में लगभग 4000 तालबात, ज़िले लिया का सबसे बड़ा स्कूल है। क्या इतनी बड़ी तादाद एक स्कूल एक छत के नीचे देखते हुए चौक आज़म की अशराफिया, चौक आज़म के वालिदैन को इस बात का एहसास नहीं होता कि चौक आज़म में एक से ज़ायद गर्ल्स हाई स्कूल होने चाहिए? जी, आपकी बात ठीक है। इतनी ज्यादा तादाद में तालबात ज़ेरे तालीम है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, और उसको एक स्कूल 10 स्कूल दे दिया जाए तो ये इसके साथ बड़ी ज्यादती है। मुतअद्दिद बार अवाम ने ये मसाइल अपने मीडिया के जरिए उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं इनकी कमजोरी है कि वो अभी तक दूसरा हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल कायम नहीं कर सके। अपग्रेडेशन की तो आए रोज ये बातें करते हैं, लेकिन स्कूल के नए क्याम के, नए गर्ल्स विंग के क्याम के लिए कोई इनका, ये तो मेरा ख्याल मुत्तफिक का मुतालबा है नेवी साहब। गर्ल्स हाई स्कूल एक नया, कम से कम एक और होना चाहिए, वैसे तो 4 होने चाहिए। तो ये तो इस पे तो आपको सबको हम आवाज बुलंद करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा जी। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 3 है जो आज़म है, मगर जो हाई स्कूल है ये एक ही है। जी ये एक है, इसको ज़्यादा होना चाहिए ताकि हर कम से कम 3-4 साइडों में, लिया शहर में 5 गर्ल्स हाई स्कूल है, तो इसलिए चौक आज़म में भी ज़्यादा स्कूल होंगे तो बच्चियों के लिए आसानी पैदा होगी आने जाने में भी और उनकी तालीम में भी। सर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अर्बन एरिया अगर साथ मिलाते हैं दूसरी एरियाज जैसे
साथ साथ के इलाके हैं उनको अगर साथ मिला लिया जाए, कुछ जी। देहातों से भी लोग आते हैं। टोटल आबादी जो है 2.25 से 2.5 लाख है। वैसे अगर शहरी आबादी हम सिर्फ देख लें चौक आजम सिटी को, तो वो 55 से 60 हज़ार है। आप अंदाज़ा लगाएं इसके ऊपर कि वो उसको हम किस हद तक जो है वो एक स्कूल कवर कर सकता है। इसके ऊपर कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 3 से 4 जो है ना हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल होने चाहिए, बॉयज़ भी होने चाहिए और गर्ल्स भी होने चाहिए। जी। तजावज़ात हटाने की बात गवर्नमेंट करती रहती है, नबी साहब आप भी इस पे बोलते हैं, इस पे शोर बहुत होता है। चौक आज़म की जो अंदरून मार्केटों में तजावज़ात है, क्या उन्हें भी हटाया गया है? क्या वहाँ ख़वातीन तालबात जो आने जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आता, कोई वो किसी अजियत से तो दो चार नहीं होते अंदरून मार्केटों में खास तौर पर? मेरे पसंदीदा आपने सवाल किया है मलिक साहब। हमारे आखिरी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जिनकी सुन्नत है कि रास्ते से कांटे और पत्थर उठाना, जी मैं जब से रिटायर्ड हुआ हूँ मेरा मिशन यही है कि रास्ते खुले रहें, खास तौर पे बच्चियों के। और मुझे इस कागज पे बहुत सफर करना पड़ा है, 75 बर्दाश्त करने पड़े हैं, मैंने भी करवाए हैं, यानी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। चले अभी जो इस पे बात हो रही जी, थी इस पे मैं आ रहा हूँ। जी आजम जामा मस्जिद की फ्रंट एंड बैक जो बाजार है वो 10 फुट के बाजार है। दोनों जानिब से 4-4 फुट दुकानदारों ने खड़े और बड़े बड़े बुतखाने रखकर अंगेज कर लिए। बाकी 2-3 फुट का दरमियान जो रह गया है उसमें मोटरसाइकिल वाले या कोई गुजरता है या बच्चियां गुजरती हैं तो वो टच होती हैं। इंतहाई ये हमारी मैडम अमीरा बेदार साहबा इसलिए को सोचना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। डीएसपी शहदा नसरीन साहबा थी, वो वक्त पर वहां जाकर गली के सामने खड़ी होती थी, शेक हैंड करती थी, बच्चों को हौसले बढ़ाती थी। लेकिन सही। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। गली हमारी बहुत तंग है, गली गर्ल्स कॉलेज की। आप पीछे से आ जाए, 20 फुट का बाजार है, यहाँ के 10 फुट का हो गया। लोगों ने कमर्शियल दुकानें बना ली, जबकि ये रिहायशी सतनी मकानात हैं और उन्होंने आगे कमर्शियल दुकानें बना ली। इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, म्युनिसिपल कमेटी करती कुछ नहीं है। मैंने एप्लीकेशन अपने नाम से दी है, मुझे डायरेक्ट करते हैं कि जफर इकबाल ये इश्यू उठाता है, अगर वो मेरे भी हमला करें। सरकार कुछ आप पे नहीं- कोई हमला नहीं कर सकता। शाह साहब, रास्तों की बात हो रही थी जी तो आप क्या कमेंट करते हैं? सर, रास्ते इस तरह हैं कि पहले जिस तरह नेवी साहब फरमा रहे थे कि डीसी साहबा ने बहुत अच्छा काम करवाया, चौक आदम के ऊपर रास्ते खुल गए। जी अब फिर दोबारा उसी तरह जो हैं रास्ते वो तंग हो गए, गलियां भी तंग हैं और जी। तजावज़ात भी लोगों ने दोबारा बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से मसाइल जूं के तू हैं। सिर्फ चारों रोड जो है हमारे करीब करीब से चंद जो है वो एरियाज, जैसे आप ले लें लैया जो है वो अस्करी बैंक तक लैया रोड है, इसी तरह फतेहपुर रोड जो है आप उसको देख लें कि वो एमसीबी बैंक तक जो है ना, बल्कि आप ये देख लें कि जो हमारा जो मदीना मेडिकल स्टोर है उसके साथ से पीछे सारा रोड जो है ना वो अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और इस तरह अब मलिक साहब एक और बात भी इसके साथ में ऐड कर दूं कि हमारा जो बाईपास रोड है, इसके नाम बनने की वजह से अब तो इन्होंने आधे से ज्यादा बना लिया, लेकिन हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के वस्त में खड़ी हो रही है। जो मेन हैवी ट्रैफिक है, जैसे निजी कंपनियों की जो बसें हैं वो भी शहर में खड़ी हो रही हैं और इतनी ज्यादा जलालत है, अब वहां से गुजरना महाल हो चुका है। बंदे जो है ना मुसाफिर शहरी पैदल भी वहां से नहीं गुजर सकते, इतनी ज्यादा ट्रैफिक फतेहपुर रोड के ऊपर जमा हो चुकी खास तौर पे स्कूल कॉलेज आने जी, जाने की बिल्कुल। औकात में तो बिल्कुल जो ट्रैफिक है वो डंप हो जाती है। इसी तरह सर लैया रोड जो है इसके ऊपर आप देख लें कि रिक्शे जो हैं ये अभी चौक आदम से जनाब लैया रिक्शे चल पड़े हैं जी। मेन रिक्शे ऑटो पिछले दिनों आपने देखा भी है कि बादल नहर के ऊपर एक मेन एक्सीडेंट हुआ मेन एक्सीडेंट और वो भी शायद यही वजह थी कि उन्होंने ओवरलोड किया हुआ था, ओवर स्पीड थे, जो ट्रॉली में जाके घुसे और कैजुअलिटीज भी हुई हैं 1-2 और जख्मी भी लोग हुए हैं। और दूसरा सर मैं ये अर्ज करता चलूं कि हमारी जो खास तौर पे जो ट्रैफिक हुकाम है, डीएसपी ट्रैफिक भी हमारी बात सुन रहे होंगे और हमारी बात ये डीपीओ साहब तक की पहुंचनी चाहिए और पहुंचेगी इंशाल्लाह कि चौक आजम जो है वो दोबारा उसी तरह मसलिस्तान आप कह लें वो बन चुका है कि चारों रोड के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। खसूसन आप देख लें कि ये इन्हीं ऑटो रिक्शों की वजह से अगर कोई उनको जाके रोकता है कि यहाँ खड़े ना करें तो वो तो बदमाश हैं, वो तो गन्ने और छुरियां निकाल लेते हैं।
कई दफा नेवी साहब के साथ उन्होंने जनाब आगे लड़ाई करने की कोशिश की है। तो ये सिलसिला कम अज कम खत्म होना चाहिए कि हमारे जो अड्डे हैं वो शहर से बाहर होने चाहिए। शहर आप देख लें, हमारा जनरल बस स्टैंड है वो वीरान पड़ा है, पता नहीं कितने फंड उसके ऊपर लग चुके हैं। अच्छा, जनरल बस स्टैंड वीरान पड़ा है और शहर में जगह जगह अड्डे कायम हो गए हैं। जी, तो जनरल बस स्टैंड की तामीर पे करोड़ों रुपए खर्च करने और हर साल उसकी मुरम्मत पे इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है नेवी साहब? जी सर, इसी से तो ये फंड खाते हैं, गैलारी अदा कायम किया है, उसकी मस्जिद में पानी तक नहीं है, वहाँ मुंशियात वालों के डेरे हैं मस्जिद में, मस्जिद में भी सारे कमरों में। आप आकर देखिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। जनरल बस स्टैंड के ऊपर उनके बिल्कुल ये कहना दुरुस्त है कि वहां पे जो नशाइयों की आमाजगाह बन चुका है। मुर्जा साहब क्या कहते हैं? मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर बस स्टैंड को चालू किया जाए और जी। ई क्लास अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, ये ट्रक स्टैंडों को भी बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, एक बेहतरीन रास्ते जो ना अपने हमले से हो सकते हैं। शहर में तजावजात भी काफी कम हो जाएंगी, तो आबादी भी कम हो जाएगी, बोझ भी कम हो जाएगा। सही आप फरमा और रहे हैं। ये बाईपास चालू करवाने चाहिए। इसी से मुंसलिक में बात करना चाहता हूँ, जी, ज्यादा तो मुख्तसर। मलक साहब, एक कॉर्नर जी, मैं बताऊंगे, दूर कह रहा हूँ, आशिक स्ट्रीट कॉर्नर पे नाइट बसें खड़ी करनी मना करते हैं, रोक दें डीएसपी ट्रैफिक और सिटी पुलिस, तो तमाम मसाइल का हल हो जाए। पता नहीं डीपीओ साहब क्यों नहीं सुनते, इस बात पे तवज्जो क्यों नहीं देते। आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? मुलाकात तो अब गए बेटे, आएंगे तो तवज्जो से बात करेंगे। चले। अच्छा, चौकाज़म मिनी पाकिस्तान है। चौकाज़म की अगर हम क्राइम की बात करें, लाकानूनियत की बात करें, तो माजी में हम देखते हैं कि अफसोसनाक वाक़यात हुए, इज्तिमाई कत्ल की वारदातें हुई, बेगुनाह शहरी कत्ल हो गए, नौसरबाजी के बड़े वाक़यात, चोरी डकैती के वाक़यात, डिजिटल ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड के बड़े वाक़यात भी चौकाज़म से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चौकाज़म तो बहुत प्यारा शहर है मुर्जा कादरी साहब। मतलब आपने बहुत अहम पॉइंट दी है। ये साहबा अदवार के अंदर ये बहुत सी मुश्किलात से दो चार हुए, तो काफी शहर बहुत सी ऐसी संगीन वारदातें हुई हैं जिसमें एमएससी का स्टूडेंट कत्ल हुआ उसका, और अगवा पावान की वारदातें बढ़ती रही और बड़े मसाइल पैदा हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का भी तावन शामिल हाल अवाम के साथ रहा, इस पर उन्होंने कंट्रोल किए। लेकिन हालात का तकाजा है कि अगर फर्शनास पुलिस ऑफिसर तैनात हों और उसके साथ अच्छी टीम मिल जाए तो ये मामला जो है ना इनको खत्म हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद चाहेंगे मौजूदा डीपीओ साहब से कि भाई आप चौकाज़म पर भी फोकस करें, आप क्योंकि इस पर पुलिस ऑफिसर हैं, सिर्फ आप चौकाज़म में तो वो कई खुली कचहरियां भी कर चुके हैं। चौकाज़म पे वो तो वो पूरी कचहरियों में गिने चुने जो लोग होते हैं उनको ये बुलवा के पूरी कचहरी करवा देते हैं। जो मसाइल पैदा होते हैं उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ उन लोगों को नहीं बुलवाते कि भाई आप आए, आप अपने आगे मसाइल बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ एसएचओ और उनकी टीम की नालायकी है कि वो अपने इलाके को गिरफ्त में नहीं ले सकते। शाह साहब, चौकाज़म का मुस्तकबिल और नई नस्ल और उसका जो फ्यूचर है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर पहले तो मैं कादरी साहब एक बात कर रहे थे, उस तरफ आना चाहूँगा कि चौकाज़म के ऊपर सिर्फ चेक एंड बैलेंस जो है, आपने बड़ी बात की कि वहाँ पे क्राइम रेशो को देखा जाए, अगवा रहता ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। वो सिर्फ ये है कि ये मेन हब है, चारों रोड इसको लगते हैं। 24 आवर्स के अंदर जहां कहीं पाकिस्तान के किसी एरिया में जाना होगा वहां को आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन है ये कि जो भी आता है बंदा वारदात करते हैं और गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो दूसरे जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई तो रेडी लगा रहा है, किसी ने कोई दुकान बनाई हुई है, उसका अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए, उसका आईडी कार्ड बकायदा चेक किया जाए, उसका एड्रेस लिखा जाए कि ये कहाँ का रिहायशी है, किस जिला से आया है,
तो मेरे ख्याल में काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। किराएदारी एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, आज भी सख्त गुंजाइश सर्चिंग मौजूद करती है, आज भी गुंजाइश मौजूद है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनके पास किराएदार। मास्क पहने हुए हैं, ये मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरा सर, इसको पुलिस देख भी रही। जी जी शाह साहब, आपने सर हुक्म किया कि इसके ऊपर बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चों का क्या हमारे है? बच्चों का फ्यूचर सर यही है कि एक वो तो जो महकमा पुलिस है इसका तावन भी दरकार है, दूसरा बच्चों को जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। जो आजकल हालात बन चुके हैं, बच्चे जो है आइस की लत में, मंशियात की लत में पड़ते जा रहे हैं। मंशियात बहुत ज्यादा इस तक वहाँ पे जो है ना वो चौक आजम में इस वक्त फैल चुकी है। आइस का नशा तो इतना ज्यादा है कि मैं आपको ये बड़े दावे से कह रहा हूँ कि तकरीबन 50% बच्चे जो है इस वक्त वो इस आइस के नशे में मुब्तला हो चुके हैं। और उसकी मेन रीजन ये है कि हमारा जो महकमा पुलिस है या दूसरे जो अहम इदारे हैं वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हालांकि देखें उनके भी बच्चे हैं, जितने लोग वहां पे रह रहे हैं चौक आदम के रहायशी, सबके बच्चे हैं, सबका नुकसान हो रहा है। यंग जनरेशन जो तबाही के दाने पे जा रही है, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि इंतजामिया और वहां के जो रिहायशी लोग हैं, सफेद पोश या जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिनके मतलब जो वालिदैन है उनको इसके ऊपर खास तौर पे तवज्जो देनी होगी, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो कम से कम इस जुर्म से और इस जो नशे की लानत है इससे बच सके। इससे बच सके। मुर्जा कादरी साहब, चौकाज़म जो है वो एक दौर था कि पाकिस्तान के बड़े जंगलात में चौकाज़म हुआ करते थे। आजकल तो दरख्त ढूंढने से भी नहीं मिलता, और जंगलात की अराजी पर जो कब्जा गर्दी के जो वाक़यात है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, अराजी को महफूज करना, कब्जा ग्रुपों से बचाना, ये जिम्मेदारी महकमा जंगलात की है, तो वो तो अदा नहीं कर रहे। अगर ये तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? मौलवी साहब, जंगल माफिया ने, जंगल चोरों ने ये इस जंगल का सफाया करके रखा। और रही सही कसम लैंड माफिया, उन्होंने जंगलात की जमीन पर कब्जा करके बहुत सारे मसाइल। तो गुज़श्ता दिनों थाना चौकासम की हदूद के साथ एक कनाल का प्लाट है, जिस पर चंद लोगों ने बैठ के खुद ही तजवीज़ बना ली कि ये जंगल का रकबा है, चलो जी इस पर हम नमाज जनाजा क़याम कर देते। नमाज जनाजा क़याम करके ना किसी से पूछा ना पूछा, वहाँ पनीरी थी, जंगलात की पनीरी थी, लाखों दरख्त थे जो लाखों दरख्त बनने थे, जो बढ़ने थे, जी आइंदा आने वाली दौर में बढ़ने थे, जी, तो वो उनका कोई पता नहीं। जब ये बात हमने महकमा तक पहुंचाई तो महकमा के लोगों ने, महकमा के अफसरों ने आगे पहुंचाना शुरू कर दी कि जी आप हमें मीडिया खा रहा है, आपने ये क्या कर दिया। असल इन लोगों का काम है कि भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय ये शहरियों पर डाल देते हैं कि हमें जी फलां मजबूर कर रहा है, हमें फलां मजबूर कर रहा नबी है। साहब, ये कौन कुव्वतें हैं जो इदारों को मजबूर करती हैं और वो ताकि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम न दें? वो आपको कोई दिखाई देती है या मुर्तज़ा साहब खुद ही जो है कहानी बना रहे हैं? नहीं, जंगल की जो आपने बात की है उसमें मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये है कि डीएफओ से लेकर एसटीओ तक नीचे तमाम गार्ड्स मिले हुए हैं, तमाम जंगलों में आरे लगे हुए हैं, और चौक आजम के गिरदोनवा में भी आरे लगे हुए हैं। प्राइवेट मिली भगत है, सफेदा कट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, रातों को होटलों पे शिफ्ट होते हैं, वो तंदूरों में रातों रात जल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, होटलों पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, अंदर हजारों मन गुटखा जो है सफेदे का, ताजे सफेदे का, जिससे पानी रेत का होता है, हमारा खून चल रहा होता है, वो उन्होंने जलाकर खाक कर दिया। और वो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए, डीएफओ वाले क्या करें, सियासियों को नहीं छोड़ते। अच्छा, मुफ्ती कुछ इनकम का जरिया भी है। जी, मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफ़ाई साहब ने कमेंट किया है कि नेवी साहब को ख्वाब गफलत से बेदार कीजिए। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती नुमान साहब। मैं अभी
ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहता हूं। अगर आप सुनने की बर्दाश्त रखेंगे, मैं बड़े बड़े करनेशों को झंझोड़ के रख दूंगा। आपने फरमाया, इसलिए मैं इस्तकामत कर रहा हूं। अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। आमीन आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल नूर लाइब्रेरी मंशियात का गढ़ है, चिल्ड्रन पार्क मंशियात का गढ़ है। दीवारें, ईंटें, लोहे, झूले सब बिक गए, मंशियात वाले ले गए। और मैं आपको बता दूं, खुर्शीद स्टेडियम का 25 लाख का बाउंड्री लोहा मंशियात वाले तोड़ तोड़ के रातों को ले गए। सुबह फजर के टाइम वो शुरू करते हैं अपना काम, और वो टुकड़े टुकड़े करके ले गए। लेकिन इन गणेशों ने जो सदर सदर की कोडी कोडी खेल रहे हैं, हमारे खून के साथ खेल रहे हैं, इनको शर्म ना आई। अच्छा, मुफ्ती साहब ने इतना भी आपको नहीं कहा कि आप बेदार हो जाएं? चले, शुक्रिया। अच्छा मुर्जा साहब, तो गरीब आदमी का अगर हम जिक्र करें तो गरीब को और गुर्बत को हमारे यहाँ यूं सजा दी जा रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरी ख़वातीन है वो अपने सेंटर पे इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी इमदाद वसूल नहीं कर सकती। वो दाखिल ही नहीं हो सकती। दाखिल होते ही उन्हें टाउट भत्ता खोर मिलते हैं, और किसी खातून का बायोमेट्रिक नहीं होता जब तक वो उस भत्ता खोर और उस टाउट की पर्ची या उसकी रिकमेंडेशन के बगैर वहां तक नहीं पहुंचती। कुछ आपको भी ये इस किस्म की शिकायत दिखाई दी है या हमें ही ये नजर आता है? जी मलिक साहब, आप सारी बात माशाल्लाह बड़ी नजर रखते हैं। आपने कह दी है। हमें तो एक माह पहले ये मसला मिसाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जेरे सामने आए थे कि लोगों को ये 2000 रुपया अगर आया है मिसाल के तौर पे, तो ये इनको 1800 रुपया 200 रुपया कटौती करते थे, जिस कटौती में मुख्तलिफ माफियात शामिल हैं। उसमें कई लोग हैं, मैं नाम नहीं देना चाहता। तो अगर डिप्टी कमिश्नर साहिबा, एसी साहब, आरएस नियाजी साहब अगर इस पर तवज्जो दें तो ये मसाइल कम हो सकते हैं और उन तक बिल्कुल सही जो ना रकम पहुंच सकती है। जी नबी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मुर्जा साहब ने तो दुरुस्त निशानदेही कर दी और तजवीज़ भी दे दी कि मैडम साहबा और एसी साहब इस मसले पे तवज्जो दें और ये मसला हल हो सकता है कि मर्दों का दाखिला ही वहाँ बंद कर दिया जाए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम निकासी आप की बात कर लें। निकासी आप की बात हम करते हैं क्योंकि पूरा साल जो है चौकाज़म झील बना नजर आता है। तो चौकाज़म बारिश के दिनों में तो वहाँ बंदा गुजर ही नहीं सकता, गाड़ियां जो है वो खराब हो जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं। तो ये चौकाज़म में हमारे रंधावा साहब भी, बक्सी साहब भी, बड़ी शख्सियात जो है वो इक़्तिदार में रही हैं, उन्होंने काम भी बहुत कराया है, मगर ये मसला जूं का तू, ये मसला मलिक साहब तब तक हल नहीं होगा कि हर मोहल्ले में, हर गली में भैंसों के बाड़े बने हुए। पिछले दिन मैंने वीडियो वायरल की थी कि 4 भैंसों का, एक छोटी सी बात है वैसे तो ज्यादा है लोगों जी वो फुजला चारा और जो ढलान बनाया हुआ है उन्होंने अपने शेर का बड़ा पंप लगाकर लाल प्रेशर से वो नीचे लाते हैं और नाली में फेंकते हैं। नाली मुकम्मल बंद हो जाती है, घास पैदा होते हैं और इस तरह से सीवरेज जो है वो रुकावट का बैस बनती। पूरे चौकाज़म का कोई निजाम, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हारिस हमीद खान साहब की टीम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी। मैं पहले उनकी शिफ्ट किया करता था, उन्होंने लॉन्ग पीरियड गुजारा है, अब वो जाने वाले हैं, अब वो काम पर तवज्जो नहीं दे रहे, जो उनके फोकस पर्सन है वो भी तवज्जो नहीं दे रहे। उनको कहा जाता है कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। जहाँ मैं शिफ्ट करता हूँ वहां उनको झुंझोड़ता भी अमीरा बेदार साहब। अच्छा, चौकाज़म के बेरोजगारों का अगर हम जिक्र करें शाह साहब,
جی تو آپ کے نزدیک بے روزگاروں کو باعزت روزگار کے مواقع کس طرح ہم مہیا کر سکتے ہیں؟ سر چوک اعظم کا بہت سا جو علاقہ ہے، بہت سی جو زمین ہے وہ خالی پڑی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی انڈسٹری قائم کر کے ان کو روزگار دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ گورنمنٹ سے کوئی اور بجٹ، اچھے بجٹ لا کے یہاں پہ محکمہ جات جو ہیں ان کو بنوا کے ان کے اندر ان کو نوکریاں دلوا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سمجھیں کہ بدبختی سمجھ لیں اس قوم کی، کہ جب صبح بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، یقین مانیں کوئی 400 سے 600 لوگ فیصل آباد روڈ کے اوپر دہاڑی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو دہاڑی نہیں ملتی۔ جی مہنگائی کا یہ عالم ہے، اور یقین جانیے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے جو ایم پی ایم این اے اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری بنائی جائے گورنمنٹ کی شراکت سے، کوئی فنڈ لا کے، تاکہ لوگوں کو روزگار میسر ہو۔ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ جہاں پہ ڈیلی ویجز پہ ملازمین کو لے کے جا رہی ہے، سرکاری ادارے ایسے ایسے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہاسپٹلز آپ کے سامنے بی ایچ یو پہ آپ خود مطلب روزانہ ایڈ پڑھ رہے ہیں، آؤٹ سورس ہو یہ گئے۔ ساری چیزیں مطلب اس کے اوپر پرائیویٹ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے جو ایم پی ایم این اے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہاں پہ انڈسٹریاں قائم کرنی ہوں گی تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو مزید ایکسٹینشن دے کے ان میں لوگ بھرتی کریں، پڑھے لکھے لوگ بھرتی کریں، جو بیچارے آج بی ایڈ بی اے ایم اے کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی بیچارے جو ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ کے باہر جا چکے ہیں، اور اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس باہر جانے کی سکت ہی نہیں ہے۔ شاہ صاحب، ان کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے۔ جی پروفیسر صاحب پوچھتے ہیں کہ چوک اعظم کے شہریوں نے اپنے شہر کی بہتری کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا خدمات سر انجام دی ہیں، خصوصاً صفائی اور تجاوزات اور صاف پانی کے لیے؟ سر چوک اعظم کے شہریوں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ میں چوک اعظم کے شہری تو جو ہمارے سیاسی ہیں نا، وہ ان سے کسی طرح جان بخشی کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی تو پٹواری کو انہوں نے جھنجھٹ میں اس کو پھنسا دیا ہے، کسی کو جناب تھانے کے اندر پرچہ کروا دیا ہے، کوئی تو جو ہے وہ بیچارے کا کسی کا ٹیچر کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، تو کوئی جناب پی این ہے بیچارہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا۔ لوگ تو جان بخشی چاہتے ہیں، لوگ آپ بیچارے کیا کریں، وہ خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا چوک اعظم کو یہ کراچی، آپ نے منی کراچی تو کہہ دیا، لیکن کوئی اتنا بڑا سٹی نہیں ہے جہاں پہ کوئی اتنی تنظیمیں بنا کے، ہاں ایک شہری اتحاد کی جناب تنظیم بنی تھی، آپ کے سامنے ہے، جی پچھلے 10 سال سے، ان سے پوچھ لیں کہ سوائے فوٹو سیشن کے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی 4 5 7 10 لوگ ہیں جو صرف فوٹو سیشن چاہتے ہیں اور فیس بک کی زینت بنے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ چوک اعظم میں ویسے کافی ساری ایسوسیشنیں اور تنظیمیں کافی کام کر رہی ہیں سر ہمارے کوئی میں نے نہیں دیکھا کسی محلے کے اندر کوئی اس طرح کوئی کام ہوا ہو، یا کسی مطلب پورے شہر کے اندر کوئی کام ہمیں نظر آتا ہو۔ پروفیسر صاحب نے نشاندہی ٹھیک کی ہے کہ شہریوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے۔ مرتضی صاحب، گزارش یہ ہے محترم جناب حفیظ صاحب، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے، گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر اپنی مدد آپ کے ہی تحت چوک اعظم کی عوام نے کام کرنے ہیں تو پھر یہ ریونیو جو اکٹھا کیا جاتا ہے، گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے، عوامی نمائندے بنتے ہیں، الیکشن پروسیس ہوتے ہیں، یہ کس چیز کی مرض کی دعا ہے؟ جی نیوی صاحب، کس مرض کی دعا ہے؟ سر جی، پرانا بی ایچ یو ہمارا ہاسپٹل تھا، اسی جگہ پہ میں رہائش پذیر ہوں، بالکل قریب۔ ٹھیک ہے۔ اس کے کھڑکیاں، دروازے لوہے مکمل منشیات والے لے گئے۔ ہم نے اپنی املاک کو نہیں سیو کیا۔ خورشید اسٹیڈیم جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسٹیڈیم، اس کو محفوظ نہیں کیا۔ یہاں وائٹ کالر جو ہے، وائٹ کالر ناکام شخصی وہ تنتناتے پھرتے ہیں، تھانوں میں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ کیسے غریب لوگوں کا کام کریں گے؟ انکم کے بغیر وہ کام نہ۔ سر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ کا قبضہ جو ہے نا وہ چوک اعظم پہ ہونے کی وجہ سے نہ تو لوگ وہاں پہ صحیح ترقی کر رہے ہیں، اور نہ لوگ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی آرگنائزیشن بنائی جا سکتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے یا ان کو سپورٹ کی جائے۔ الحمدللہ آپ جو اپنی مدد آپ کے تحت چودھری اعجاز احمد صاحب نے ڈائلسس کے سلسلہ میں
جو ورک کیا ہے, پیپر ورک کر رہے ہیں, ماشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے. بہت بہتری آئی ہے. ضروری اچھا شاہ صاحب, حفیظ اللہ تین صاحب نے اپنے سوال کی وضاحت فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا سوال صرف شہریوں میں سے لالا احمد گجر صاحب سے ہے. پرنسپل صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی, یہ ان کی تنظیم کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جی دیکھیں جی, اگر لالا احمد گجر نے کوئی تنظیم بنائی ہے تو ان کی اپنی حد تک وہ موجود ہے. ہمیں تو آج تک وہ تنظیم نہ کہیں نظر آئی ہے, نہ ان کو کوئی کام نظر آیا ہے. جی اچھا, آج کل مرتضی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان کی آمد ہے, اور کاروباری حضرات اور بیوپاری حضرات نے بھی جانوروں کی خریداری کرنی ہے, اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ بھی خریداری کر رہے ہیں. تو آپ کے ہاں جو چوک اعظم کی منڈی ہے وہ پورے ڈیرہ ڈویژن میں بلکہ پنجاب کی ٹاپ منڈیوں میں شامل ہے. تو اس منڈی میں مویشی پال حضرات اور مویشیوں کے لیے کوئی سہولت ہوتی ہے؟ اور کہتے ملک صاحب یہ سہولت بھی ہے کہ بھی اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدنا ہے تو ان دنوں میں وہ ٹیکس ختم کر دیتے تھے جو قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے. جی اب پچھلے دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ٹیکس انہوں نے ڈبل کر دی, جو ان کی شرح اوسط ہے کتنی ہے, اگر وہ 500 ہے تو انہوں نے 800 کر دیا, 800 کر دی ہے جی ایک جانور کے پیچھے. تو یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ سال بعد تو عید قربان آتی ہے, اس پر ان کو جس طرح ہمارا رمضان شریف آتا ہے تو ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان کی حیثیت سے ہمیں تو کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ بآسانی اور طبقہ جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکے. جی نیوی صاحب, منڈی مویشیوں میں آپ کو کوئی مسائل مشکلات دکھائی دیے ہوں؟ جی منڈی مویشی روڈ پہ واقع ہے, غلط جگہ پہ واقع ہے. امیرہ بیدار صاحبہ کو ایک حکم جاری کرنا چاہیے کہ وہاں سے منڈی ختم کی جائے. گورنمنٹ ٹو بلاک ہوتی ہے, بکھر کے ملک سے, فتح پور کروڑ کے ملک سے, چوکان کی سب بلاک ہوتی ہے, راستے بلاک ہوتے ہیں, وہاں راستے میں جگہ ہوتی ہے. اس کو تھانے کے آگے قبرستان سے آگے وسیع جگہ ہے, آگے نہر بھی موجود ہے, وہاں پہ لگائی جائے. وہاں ٹریفک بلاک نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, وہ بھی بائی پاس سے وہ وہاں سے گزرے گی جی, وہ باہر کی باہر ہی وہ وہاں پہ کور ہو جائے گی. یہ میرا مشورہ امیرہ بیدار صاحبہ ایک حکم پہ جاری کر سکتی ہیں. اب تو چلے عید گزرنے دیں. اچھا ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ اب وقت نزدیک آ گیا. چوک اعظم اور لینڈ مافیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, بلکہ چوک اعظم شہر جو ہے وہ لینڈ مافیا کے سائے میں پرورش پاتا ہے. شاہ صاحب جی آپ کو لینڈ مافیا کے سائے کہیں دکھائی دیتے ہیں؟ جی بالکل دکھائی دیتے ہیں. یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک پاکستان اور وہاں پہ دو دستور, مثال مطلب میں آپ کو دے رہا ہوں. جی جو سرکردہ لوگ ہیں, جو نامور لوگ ہیں, وہ اسی طرح جو لینڈ ہے اس کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں, اور جو عام لوگ ہیں اگر ان کے پاس کوئی جھونپڑی والا بیٹھا بھی تھا تو اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے. آج بھی اس طرح کے لوگ وہاں پہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح کے آپریشن پورے پنجاب کے اندر چلا تھا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, کہ ہر جگہ سے انکروچمنٹ اور گورنمنٹ اراضی, گورنمنٹ لینڈ جو تھی اس کا قبضہ واگزار کروایا جائے, لیکن چوک اعظم کے اوپر ابھی تک حالات اس طرح کے نہیں آئے. آپ یہ دیکھ لیں جنگلات کی اراضی کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, فارسٹ پارک کے ساتھ دیکھ لیں یا پھر بائی پاس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جنگلات کے رقبے کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, اور ہماری انتظامیہ کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ قبضہ خالی کروا سکے. اچھا میرا ایک پینل پورے سے ایک سوال ہے. جی چوک اعظم کی مسائل اور مشکلات اور اس کے ذمہ داران کو ہم نے ڈسکس کیا. چوک اعظم میں کوئی ایسا کام, کوئی جسے آپ اچھا گردانتے ہو کہ جی یہ چوک اعظم کا کام ہے جو اچھا ہو رہا ہے؟ جی ملک صاحب مجھے یاد ہے کہ ڈی سی لیا امیرہ بیدار صاحبہ اسی طرح عید سے کچھ دن پہلے, ایک ماہ پہلے یا 15 دن پہلے آئی تھی اور ایسی علائشیں اٹھانے کا سسٹم بنایا تھا. کیمپ آفس بنائے تھے, رجسٹر رکھے تھے, پولیتھین بیگ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے, بیگ بڑے
वो इशू हुए थे, और बाकायदा तीसरे दिन के बाद हमें कोई स्मेल कहीं नहीं आई। सफाई सुथरे का निजाम जो है, चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग टीम में, मैं मॉनिटरिंग टीम के साथ था और मैंने भी देखा कि बहुत अच्छा सिस्टम था, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पुराने तजर्बे को सामने लाते हुए इंतजामिया इस पर उसी तरह बल्कि ज्यादा तवज्जो देगी ताकि आवाम को सहूलत मैसर हो। जी मोहम्मद मुर्तजा कादरी साहब, आपको कोई काम मैं गुजारिश जी करता हूँ जनाब DPO पुलिस ऑफिसर वसीम साहब को, उन्होंने लैंड माफिया को नक डालने के लिए एक डेस्क का क्याम गुज़श्ता दिनों में बताया कि भी हम कर रहे हैं। जी जो जिन लोगों की जमीनें या जिन लोगों की गाड़ियां गैर रजिस्टर्ड हैं वो खरीदते हैं, उनमें बाद में मसाइल पैदा होते हैं। सही बात। उसके हल के लिए हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। सही। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई चंद और जल्द इस प्लान को अमली जामा पहनाया जाए ताकि ये मामला भी रोक सके या खात्मा हो सके। जी शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, जी मलिक साहब, आपने सवाल ये पूछा है कि कोई आप एक किसी अच्छा- ऐसे काम, किसी एक काम पे आपको इत्मीनान है? मैं सर एक निशानदही कर दूं कि चौक आजम हमारा समझे कि आबाई शहर समझ लें, जी आपका घर 10 है। से 15 किलोमीटर का फासला है, गांव हमारा साथ है, मैट्रिक और फिर यहाँ तक। मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था जो काम जिस तरह के मुर्तज़ा ने किया कि मोहम्मद अली वसीम DPO लिया ने किया है आके, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर DC साहबा वहाँ जाती थी तो इंक्रोचमेंट तजावजात ख़त्म नहीं हो पा रही थी, जो कि शहर के नज़दीक, और इन्होंने स्पेशली वहाँ पे फोर्स भेजी, टास्क फोर्स भेजी, और उन्होंने उसकी सपोर्ट की जाके। उन्होंने कहा जी जो बंदा आगे आता है, जो बदमाशी दिखाता है, वो हमारे सामने लेके आए। रोड के ऊपर खड़े हैं, गवर्नमेंट की जगह के ऊपर खड़े हैं, जब इनको साइड पे जगह दी जा रही है तो रोड पे कोई नहीं खड़ा होगा। उसी दिन से कम से कम ये जो मीनार है हमारा, उसके इर्द गिर्द से जो तजावजात हैं सारी हटा दी गई हैं, और वहां से बासानी ट्रैफिक मूव भी कर सकती है, और पैदल चलने वाले लोगों को भी आसानी है। और दूसरा, इनके आने से ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 साल में या 25 साल, हम तो 50 साल के होने वाले हैं, जब से हमने होश संभाली है कि आज तक कानून की बालादस्ती, खास तौर पे जब से ये मोहम्मद अली वसीम साहब आए हैं, उन्होंने आके हमारी तीनों तहसीलें जो हैं, हर तहसील के अंदर एक एक बंदा, एक एक पुलिस ऑफिसर, एक एक सिपाही तक को पता है कि हम किसी को के साथ नजायजगी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा चोर डकैत जो राहजन थे सबका खात्मा हुआ है। अभी आपके सामने एक मिसाल है कि 15 दिनों के लिए DPO साहब गए हैं, छुट्टी के ऊपर गए हैं, 15 दिनों में उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरे डिस्ट्रिक्ट के निजाम को, कि हर थाने के अंदर चोरी डकैती। अब माशाल्लाह वो पहुंचे तो आप देख लेंगे कि क्या बनता है। इससे पता ये चलता है, हमने ये अखज किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर अगर ऑफिसर ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, और हर चीज ठीक होगी। पुलिस वाला भी आपकी बात सुनेगा, थाना में आप जाएंगे तो मुंशी भी आपकी बात सुनेगा, पटवारी भी आपकी बात सुनेगा। प्रोफेसर हफीजुल हकीम साहब की बात सुनते हैं, वो फरमा रहे हैं कि मेरी तजवीज़ यही है कि सहाफ़ी आगे आए और मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मसाइल हल करें, क्योंकि सहाफ़ी मुआशरे की आंख होता है। अब सहाफ़ियों को जोर बाजू भी दिखाना चाहिए। आज चौक आज़म के सहाफ़ियों ने मिलकर प्रोग्राम में शिरकत की, जो खुशाइंद है, और लिया TV ने एक अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम करेंगे, हम हाजिर हैं सर, जितने जहां तक हम लोग कर सकते हैं हम लोग हाजिर हैं। मतलब साहब वही बात मैं दोनों भाइयों की थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ना जिक्र करूँ तो ये कंजूसी होगी। कमांडर पुलिस लिया मोहम्मद अली वसीम गुजर साहब जिस तरह से जिले को कमांड कर रहे हैं, उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिली। और राव उमर फारूक साहब DSP ट्रैफिक साहब का, उन्होंने जिस तरह से मुजफ्फर मेहदी साहब, जिस तरह से हेड सार्जेंट इजाज साहब, जिस तरह से चौक आज़म के रास्ते खुलवाने में पेश रहे, हम उनको नहीं भूल सकते। और अब जफर इकबाल साहब जो DSP ट्रैफिक हैं, वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और DPO साहब के तमाम अहकामात की बजावरी के लिए, रास्ते खुले कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ हर वक्त तैयार है, कोशिश है। बिलाशुबा
उनकी तारीफ बनती है और मैं करता हूँ। अच्छा, प्रोग्राम का आखिरी सवाल, जी आप इस सारी जो मसाइल और इसकी जो हमने एक रुदात बयान की है और आपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात से लिया के टीवी के नाज़रीन को शेयर किया, आप क्या फरमाते हैं कि इन सारे मसाइल का हल क्या है? शाह साहब। जी मलिक साहब, इन सारे मसाइल का हल ये है कि जितने डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त समत में काम करे और शहरी जो हैं वो उनका साथ दें। साफ़ी बिरादरी की जहाँ तक बात है, वो उनके मसाइल उजागर करे, सामने लेके आए। लोग जो है ना, फिर शहरी भी साथ दें इंतज़ामिया का। मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर ये सारे लोग जो हैं मिल के ये अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुआशरा अच्छा बनेगा, यंग जनरेशन भी अच्छी होगी, शहर में सफाई सुथराई भी बेहतर होगी, मसाइल का भी खात्मा होगा। मोहम्मद मुर्तज़ा कादरी साहब। जी, मोहतरमा अमीर के साथ वो हमारे ही कबीले की एक बेटी है। तो उन्होंने जिस अंदाज के अंदर, जिस तरीके से अपनी ड्यूटी के फर्ज सर अंजाम दिए, मैं समझता हूँ इसी तरह अगर दीगर मर्द हज़रात जो अफीसर हैं वो भी इन्हीं की तरह जनाबला अगर अपनी ड्यूटी के फर्ज सर अंजाम दें तो बेहतरीन एक माहौल, एक खुशगवार तबका जो ना वो निखर कर सामने आ सकता। जी बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल नेवी साहब। जी, अगर मुआशरे की खराबी आपने खत्म करनी है, जी डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा को मैं ज्यादा कह रहा हूँ, एसपी साहबान को भी, ये जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं, इसमें फजलु साफी मौजूद है। एक एक साफी 4-4 बंदों को साथ करता है। मैं निशानदेही कर सकता हूँ, मैं नाम बता सकता उनको भी पता है। हूँ। खराबी को खत्म करें, आपके उसको पकड़ के बंद करें। इंतजामिया को हर चीज का पता है। नेवी साहब, इंतजामिया को कुछ पता नहीं है सर जी, इंतजामिया को कख पता नहीं है जब तक हम नहीं बताएंगे। वैसे मलिक साहब आपके प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है, एक छोटी सी बात जी शाह साहब, एक छोटी सी बात मैं अर्ज करता चलूं। ये नेवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, बड़े अफसोस की बात है कि 18 साल या 24 साल या 28 साल की जो औरत है, खातून है, अगर वो पैसे नहीं देती तो उसकी बायोमेट्रिक पास नहीं होता। और 55 साल और 70 साल की जो खातून है, जो औरत है, वो अगर 2000 कटौती करवाती है तो उसका बायोमेट्रिक भी पास है और पैसे भी उसको इन टाइम मिलते हैं। ये इंतहाई अफसोसदेह मकाम है, अफसोसनाक बात है ये। बल्कि सुबह घर से निकल के आती हैं औरतें और शाम को गरीब वापस लोग लौट जाती हैं, और वो गरीब औरतें भी पैसे नहीं देती, जिनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये बिल्कुल खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके साथ अगर ये सलूक है तो फिर आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक होता है। और सर एक और बात भी मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इंतजामियों को बताता चलूं कि एक होते हैं ना वो चट्टी दलाल और कुछ एजेंट जो खड़े होते हैं जी, एजेंट उन्होंने खड़े किए हुए हैं। ये मुझे पिछले दिनों पता चला है फ्राइडे को कि एजेंट लोग जो है वहां पे खड़े हैं, वो मुकमुका कर रहे हैं, बीबी हमें 2000 दोगी, 1500 दोगी, 3000 दोगी तो हम जनाब आपको ऐसे ऐसे अभी पैसे निकलवा के दे देते हैं। खराबी कहां पर है सर? ए से लेकर जी तक लोग इसमें मुलविस हैं और अपने अपने कमीशन वसूल करते हैं। इसके ऊपर ठोस किस्म के जो है वो इसके ऊपर इकदाम उठाने होंगे ताकि जो गरीब लोग हैं कम से कम उनका तो हक बच सके, उनका तो राइट ना मारेंगे, उनका राइट तो ना खाएं। बहुत शुक्रिया सैयद कौसर बादशाह साहब। इंतजामिया में इस प्रोग्राम मैंने मैं विधानसभा से गुजारिश करना चाहूंगा, जिन लोगों को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बेवा को ईद उल फितर के मौके पे 10,000 रुपया ईदी के तौर पे दी थी, हाल अभी तक कई ऐसे लोग मौजूद हैं, कई ऐसे बेवा मौजूद हैं जिनको वो 10,000 नहीं, कभी उनके कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कभी उनका कोई मैसेज आ जाता है, अभी तक उनके पास वो मरियम नवाज साहबा के जो 10,000 का लेटर है वो मौजूद है। वो सिटीजन पोर्टल पे शिकायत करें ना, उन्होंने शिकायत की है, जी लेकिन वो कहते हैं मुतलका जनाबला अपने इस्लाम के अंदर आप ना बात करें।
ضلع کے اندر بات کریں, ضلع کے ہیڈ سے بات کریں, تو وہ اس پر توجہ دیں, مہربانی کریں, وہ واپس لے لیں بنی نواز کا وہ 10,000 کا پمفلیٹ پے آرڈر جو ہے, یا پھر وہ نیوی صاحب سبھی پروگرام کے تقریباً اختتام ہو پروگرام اوور ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ملک مقبول الہی صاحب, عبدالرحمان فریدی صاحب, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑے اہم سوالات کیے, اور جو آج کے کرنٹ سوالات ہیں موجودہ معاشرے کے, وہ آپ نے ہم سے ڈسکس کیے. ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق طبیعت ناسازی کے باوجود کوشش کی ہے کہ عوام تک آگاہی دیں, ان کا سلوشن بتائیں, سرکار کو جگانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد ظفر اقبال نیوی صاحب, بہت شکریہ محمد مرتضیٰ قادری صاحب, بہت شکریہ کوثر عباس سید صاحب. پروگرام میں مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے, عبدالرحمان فریدی صاحب نے, پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے, اس کے بعد جناب والا لقمان اسد صاحب نے, رانا سلطان محمود اختر صاحب نے, منیر احمد کھوکھر صاحب نے شرکت کی اور اپنے زرعی پیغامات اور آپ کو دعائیہ کلمات سے نوازا ہے. مختلف ایشو ثاقب عبداللہ نظامی صاحب نے بھی پروگرام میں شرکت کی, بلکہ مفتی نعمان صاحب تو لاہور سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے. یقینی طور پر آج کی یہ نشست جسے چوک اعظم کے مسائل, مشکلات اور ان کے حل کے حوالے سے موضوع بحث بنایا گیا تھا, اس پہ چوک اعظم کے متحرک اور فعال صحافی صاحبان نے اپنے ان پٹ سے ہمیں نوازا. یقینی طور پر آن گراؤنڈ جو یہ آنکھ دیکھتی ہے وہ آج زبان نے اسے بیان کیا. ہمیں امید ہے کہ جن بیسک ایشوز اور پبلک پرابلمز کا ذکر ہمارے پینل نے کیا, ان پہ ضلع انتظامی سربراہ, تحصیل انتظامی سربراہ, متعلقہ سرکاری اداروں کے ذمہ داران, عہدیداران, اہلکاران ان پہ توجہ دیں گے. ظاہر ہے یہ سماج مل جل کر ذمہ داریاں پوری کرنے والوں کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے. اگر ہم سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اور اپنے فرائض منصبی کما حق طور پر انجام دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو نہ صرف ضلع لیا, نہ صرف چوک اعظم, بلکہ پاکستان بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا. اس ضمن میں یقینی طور پر کسی اور سے امید رکھنے سے قبل ہمیں سب سے پہلے اپنی طرف نگاہ دوڑانی ہوگی کہ بحیثیت سوسائٹی کے ایک ذمہ دار فرد کے میرا رول کیا بنتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیسے ہونا چاہیے. اگر یہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سوسائٹی ساری کی ساری رحمت اور فضل کا ذریعہ بن جائے گی, اور سوسائٹی میں کوئی مسئلہ, کوئی مشکل, کوئی پرابلم نہیں رہے گا. کیونکہ جب سوسائٹی میں درد مندی رکھنے والے, اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر کے لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ایک مرتبہ پھر اپنے پینل ممبران جناب محمد ظفر اقبال نیوی صاحب, محمد مرتضیٰ قادری صاحب, جناب کوثر عباس شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں. سب سے بڑھ کر اپنے ناظرین کا اور لیا ٹی وی کے احباب کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے سینئر صحافی سی او لیا ٹی وی ID عبدالرحمان فریدی صاحب. ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو ایسے اچھے پروگرام آپ تک ترتیب دے کر پہنچاتے ہیں. پروگرام کے آخر میں اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نگہبان.